Hello students, myself Sarita, Department Physics from GNC CISA. Today we study Statistical Physics 4th SEM paper first. आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्यों स्टडी की गई और व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। आज हम बेसिक जो इसकी टर्म्स हैं स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स की उनको स्टडी करेंगे और क्लासिफिकेशन क्या रहा स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स का, कौन कौन सी आपके पास अप्रोच स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स की हैं जो हम स्टडी करेंगे इस सेमेस्टर के अंदर। तो व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स। स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स आपके पास क्या है। टिल 17th सेंचुरी तक हम जो स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ मैकेनिक्स वर वेल अंडरस्टूड एंड यूज्ड टू एक्सप्लेन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन बल्क। 17th सेंचुरी तक जो मैकेनिक्स के लॉ थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की थी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। But these laws could not be applied in the cases when the system contained a large number of particles, either because of some inherent mathematical complications. अब 17th सेंचुरी तक जो मैकेनिक्स के लॉज थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे फिज़िकल प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की। जैसे कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो गई सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। But these laws could not apply in the cases when the system contain a large number of particles. क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे ये लॉज जब हमारे पास पार्टिकल्स लार्ज नंबर में थे। हमारे पास क्या आ रहा था, मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन। The complete information about the motion of a mechanical system consists of a large number of particles could be obtained by solving equation of motion which are equal to the number of degrees of freedom of the system with the help of knowledge of initial positions and momentum of all the particles and also the information about the nature of interaction between these particles. The large number of particles in the system makes the task of solving this equation of motion impossible when even with the present day fastest and largest memory electronic computer. Even if the equations are solved, अगर इक्वेशन सॉल्व भी हो जाती थी बट द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। It is therefore impossible to apply the laws of mechanics of principle of dynamics to solve the problems of microscopic chunks of matter consisting of large number of particles like molecules, atoms, electrons. However, such problems were tackled using the concept of statistical physics or statics. These methods are therefore applied to physical systems which are composed of very large number of particles which are all identical but can be differentiated by means of some properties. As the number of particles are very large, therefore the method gives some interference inference regarding the average property of the system. For calculating these average from dynamics, we are to solve a large number of equations of motion for all the particles with the help of some initial conditions which are not known. Hence, exact average cannot be calculated from dynamics. In statics,
The average are obtained without knowing the detail of individual particles of the system. The statistical method do not give the actual behavior of the system, but its average behavior to that of very great extent. The larger the number of particles in a physical system, the more accurate is the statistical information. मीन्स क्या है, जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. द स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाइड इन फिजिकल सिस्टम हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे गिव मीनिंगलेस रिजल्ट्स. सो अब आपके पास जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स थी वो आपके पास किस लिए यूज़ की जाती है. आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो 10⁻23 यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जिस फिज़िक्स को हम स्टडी करेंगे दैट इज़ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स. स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर आपके पास क्या था, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. एवरेज आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे दैट इज़ क्या होंगे, एवरेज. आपके पास एवरेज की बात करेंगे हम पूरे कंप्लीटली सिस्टम पार्टिकल्स के एवरेज बिहेवियर की बात करेंगे वहाँ पे, नॉट द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स. अब हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स. ये देखिए, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बिहेवियर ऑफ द असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग द concept ऑफ स्टैटिक्स. Statics is the science of collection, classification, presentation, analysis, and interpretations of the numerical data. We have two types of statics, classical statistical और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वांटम स्टैटिक्स और फर्मी डायरेक स्टैटिक्स. जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल स्टडी करेंगे दैट इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल. उसके बाद हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल की बात करेंगे. क्वांटम स्टैटिस्टिकल के अंदर हम फर्मी डायरेक स्टैटिक्स को स्टडी करेंगे. अब आपके पास क्लासिकल स्टैटिस्टिकल आई, फिर क्वांटम स्टैटिक्स आई. क्यों आई क्लासिकल, अब इसका भी एक रीज़न है. ये देखिए, क्लासिकल स्टैटिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी सक्सेसफुली, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन सम अदर फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर. तो इनको स्टडी करने में क्लासिकल स्टैटिक्स क्या रही, अनेबल रही. तो देन क्या किया गया, क्वांटम स्टैटिक्स की हेल्प से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, इन सभी फिनोमिना को हमने किससे स्टडी किया, क्वांटम स्टैटिक्स से. दीज वर एक्सप्लेन्ड बाय बोज, आइंस्टीन, फर्मी डायरेक यूजिंग द आइडिया ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स. जब हम क्वांटम स्टैटिक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बोस, आइंस्टीन एंड फर्मी डायरेक के आइडियाज़ को स्टडी करेंगे इन क्वांटम स्टैटिक्स में. बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स इज़ यूज्ड इन केस ऑफ indistinguishable identical particle having zero or integral spin. और फर्मी डायरेक स्टैटिक्स इज़ यूज्ड इन केस ऑफ indistinguishable identical particle having spin half. अब हम स्टडी कर रहे हैं बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स. जो आपके पास बेसिक टर्म हमें स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हम यूज़ करेंगे वो आप सबको पता होनी चाहिए
कि क्या क्या है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टम। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम हमारे पास क्या है, ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ मैटर which is to be analyzed. A system is divided in two categories mainly. सिस्टम आपके पास मैटर का वो पार्ट है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसको हम कंप्लीटली स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करें तो इन दिस अप्रोच ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर is considered without taking account the events occurring at that molecule level. Macroscopic approach does not require behavior of individual particles. Macroscopic observations are completely independent of the assumption regarding nature of matter. एग्जाम्पल क्या है इसके, मूविंग कार, लिक्विड ड्रॉप। अब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर जो बात हम करेंगे, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच रिक्वायर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आर completely dependent on the assumption regarding nature of मैटर। एग्जाम्पल्स इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच रिजल्ट इन वेल डिफाइंड आउटकम्स। व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट इन साइंस रिपीटेडली under some conditions we get almost the same results, but the outcomes may be different if the experiment is performed under identical conditions. Random experiment. Random experiment आपके पास क्या, is defined as an experiment in which all possible outcomes are known in advance and no personal bias is exercised. एग्जाम्पल हम इसका क्या लेंगे, थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाइस। किसी भी डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो इन दिस केस हमारे पास क्या है, 6 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, आइदर हेड और टेल। दिस इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हेन सच एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट वंस, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायल। देन हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस। Sample space of a random experiment is defined as the set of all possible outcomes of the experiment. Sample space के अंदर हमारे पास क्या होता है, all possible outcomes of the experiment. सेट है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। The possible outcomes are called sample points. The sample space is generally denote letters. ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें और सैम्पल स्पेस की बात करें। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। टॉसिंग ऑफ एन अनबाइस्ड कॉइन, अगर किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगा, एच और टी, हेड या टेल। टॉसिंग ऑफ 2 अनबाइस्ड कॉइन, अगर हम एक की जगह 2 कॉइन्स लेते हैं तो हमारे पास क्या होंगे सैम्पल स्पेस, एच एच हेड हेड, एच टी हेड टेल, टी एच टेल हेड, टी टी टेल टेल। ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रंस की बात करें तो हमारे पास सैम्पल स्पेस की क्या बात होगी,
BB बॉय बॉय, BG बॉय गर्ल, GB गर्ल बॉय या GG। तो अब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट और व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इवेंट। एन इवेंट इज डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। For example, when we toss a coin, the coin may fall with its head upwards. It is an event. इवेंट आपके पास क्या है, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। सपोज करो हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास हेड आया, तो ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। सिमिलरली अगर हम किसी डाइस को रोल कर रहे हैं, अगर वो स्टॉप होता है 4 की साइड या 5 की साइड, तो इट आल्सो इवेंट। इट मीन्स अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास कितने इवेंट पॉसिबल हैं, 2 इवेंट। एंड अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं, 6 इवेंट्स कैन टेक प्लेस। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है, द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ all experiment or all of these have equal preference. In this experiment of tossing of an coin, the outcomes head and tail equally likely. It means equally likely outcomes क्या है कि probability आपके पास सेम हो। सपोज करो हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी क्या है, 1/2, और टेल आने की भी क्या है, 1/2। तो दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। Exhaustive outcomes. The outcomes of random experiment are called exhaustive. If these cover all the possible outcomes of experiment in this experiment, throwing a dice. अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो जो हमारे पास आउटकम्स आएंगी दैट इज़ क्या होंगी, एग्जॉस्टिव आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ ए ट्रायल which ensure the occurrence of particular outcomes is called favorable event. For example, in a trial of tossing a coin, if we consider the appearance of tail up as favorable event, then appearance of head up will be क्या होगा, unfavorable. फेवरेबल आउटकम्स का मीनिंग क्या है, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, हमारे पास टेल अपीयर हो रहा है अप में, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होगा दैट इज़ क्या होगा, टेल, और हेड क्या होगा, अनफेवरेबल आउटकम्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास क्या है, 2 events are said to be independent if the occurrence of any one of them not influence the chance of occurrence of the other. मीन्स क्या है कि एक की आपके पास प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी या ऑकरेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, तो वो इवेंट्स आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हेड अप और 1 कॉइन और टेल अप फॉर द अदर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हम 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास एक के अंदर टेल आ सकता है और दूसरे के अंदर हेड आ सकता है। ये दोनों क्या हैं, आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक इवेंट के ऊपर दूसरा इवेंट डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं,
two events are said to be dependent if the occurrence of any one of them influences the chance of occurrence of the other. डिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग क्या है? एक इवेंट अगर दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर रहा है तो आपके पास वो इवेंट क्या है? डिपेंडेंट इवेंट. एग्जाम्पल, व्हेन वी ड्रॉ एन एस फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. अगर हम एस को ड्रॉ करते हैं 52 कार्ड्स में, देन इट पॉसिबिलिटी इज 4 क्या होगी? 52. एंड नाउ इफ वी डोंट पुट पैक द ड्रॉन कार्ड, और अगर हमने वापस एस को उसका के अंदर पैक के अंदर नहीं रखा और एंड अगेन वांट टू ड्रॉ एन एस इन द सेकेंड ट्रायल, और हम सेकेंड ट्रायल के अंदर एस को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 3/51. द सेकेंड इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट. तो इस टाइप का जो हमारे पास इवेंट्स है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स. ट्रायल, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड ट्रायल. किसी द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर पर्पज, किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा? ट्रायल. और इसको हम बार बार रिपीट भी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है? परम्यूटेशन, द वर्ड परम्यूटेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट and the word combination refers to the formation of groups. permutation का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट, कि पार्टिकल्स को क्या करना? अरेंज करना. और जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है दैट इज़ क्या है? ग्रुपिंग. कॉम्बिनेशन के अंदर हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ग्रुप्स की बात करेंगे. ये देखिए, परम्यूटेशन आपके पास क्या है? सपोज permutation, suppose we have 4 objects marked A, B, C, D. If we take any 2 objects at a time, then they can arrange as follow: A, B, B, A, C, C, A, D. यहाँ पे D, A भी आएगा, मिसप्लेस हो गया लिखने में. B, C, C, B, B, D, D, B, C, D and D, C. That is, in all 12 arrangement are possible. In arranging the object, the order of their placing is also taken as into consideration. Thus AB and BA are two different permutation. तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है दैट इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन. Thus permutation refers to the arrangement of n mutually distinguishable objects taking R at a time, such that the order of their placement is taken into account. So we say that 4 objects by taking 2 at a time is, आपके पास परम्यूटेशन वैल्यू क्या होगी? 12. मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? 4p2 इज इक्वल टू क्या होगा? 12. इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम. देखिए NPR, एन यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और 2 यहाँ पे क्या है? जिनको हम लेके चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू R. तो आपके पास NPR 4p2, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परम्यूटेशन अरेंजमेंट की वैल्यू क्या आएगी? कितनी आएगी? 12. अब कॉम्बिनेशन की बात करें. इन
In the combination, we form groups of the object without paying attention to the order of their placement. Thus, four objects marked A, B, C, D can be combined by taking two at a time as follows. तो यहाँ पे अब हम जो बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। कम्बिनेशन के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल की ओर हम ध्यान नहीं देंगे। ये देखिए कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। द order placing the object is inertial in the combination. Thus A, B and B A stand for the same combination. A, B and B A आपके पास क्या है? सेम कम्बिनेशन है बट डिफरेंट परम्यूटेशन। पर परम्यूटेशन के अंदर ये आपके पास क्या होगा? डिफरेंट होगा। कम्बिनेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। कम्बिनेशन के अंदर मैं बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ इस वर्ड पे। कम्बिनेशन के अंदर जो हम बात करेंगे दैट इज़ किसकी बात करेंगे? ग्रुप्स की। सो वी फाइंड दैट फोर ऑब्जेक्ट कैन बी कंबाइंड टुगेदर बाय टेकिंग टू एट ए टाइम इन 6 वेज। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कम्बिनेशन को? 4C2 इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कम्बिनेशन का? NCR। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ये हमारे